Namaste everyone. Namaste everyone. I am Anudedi from Arambha Yoga Institute. A very good evening to all of you. I warmly welcome you to the orientation session of the Patanjali Yoga Sutra lecture series. First, I would like to give some introduction about Arambha Yoga Institute. Arambha Yoga Institute is located in Kandivali, Mumbai. It's an ISO certified institution that follows international standards for quality management. We are accredited by the Yoga Certification Board YCB under Ayush Government of India, and we operate as an educational branch of the Arambha Yoga Foundation, a public charitable trust registered under the Bombay Charitable Trust Act. Our institute is recognized as one of Mumbai's trusted yoga institutions. We aim to enlighten and empower students by providing authentic education, training, and guidance in the yoga teaching profession. Our vision is to help practitioners discover the true essence of yoga, apply yogic principles in daily life, and ultimately create a balanced, positive, and harmonious society. Now, I would like to introduce Sri Niranjan Ji Gogia sir, our mentor. We are honored to have Sri Niranjan Ji Gogia sir with us for the lecture series. With more than 45 years of experience in yoga, he began his journey with the Yoga Institute, Mumbai in 1986 as a regular faculty for teacher training, teaching yoga technology and philosophy, and applied yoga psychology based on classical scriptures such as the Patanjali Yoga Sutras, Sankhya Karika, and Hatha Yoga Pradipika. Over the years, he has served as a visiting faculty at prestigious institutions including Mumbai University and Somaya College, Mumbai, conducting yoga-based programs on healthcare, stress management, concentration, and memory enhancement. His expertise has also taken him across the globe to countries like Canada and Japan, where he has delivered lectures on yoga and philosophy. He has authored several books and journals on yoga texts, Sankhya metaphysics, and practical yoga techniques such as asanas, pranayama, meditation, bandhas, and mudras. His profound knowledge, simplicity, and dedication to yoga make this series a rare and precious opportunity for all of us. So, this was a brief introduction about Arambha Yoga Institute and our respected Sir Sri Niranjan Ji Gogia Ji. Now, without further delay, I hand over the session to Niranjan sir. Thank you. Thank you, Anuvedi. Thank you for such a lovely introduction. Niranjan sir. Yes. Namaste, everyone. Namaste, Little correction in the introduction. I have not authored books, but I have contributed, and I have contributed to the 4 encyclopedia volumes which were published by Yoga Institute, and then Teacher's Manual Yoga for Children that I have contributed to. So I have independently not authored any particular book. Then I have contributed also by way of editing one book written by an Australian gentleman, Gary McHarg. So these are, independently I have not. And then as far as this 45-year experience is concerned, yes, sutras I have been studying for past 45 years, but the systematic learning of sutras started about 40 years back. So that is almost now this February 26, I'll be completing 40 years of formal study of or systematic study of Yoga Sutras under the guidance of Dr. Jaydev from Yoga Institute. Because in 1986 February, I started formally studying or systematically studying these Yoga Sutras, which is our subtopic. So with this, I go to the topic today, that is Yoga Sutras. So this being introductory session, we have to understand what is Yoga Sutras, importance in the field of yoga. 40 years back, 45 years back, it was a very interesting thing that I used to talk to my friends and I used to tell them that, certain things they are not there now, but they will come back.
because everything happens in a cyclic process. So that time classical music was very low. Hardly people were listening to classical music. The pop music and other things were popular. Ayurveda was totally down. Ayurveda, Uh, nobody, yeah, Whereas there are Hindi students also who has enrolled. So maybe uh, we can communicate Hindi here. Everybody I think knows Hindi, right? Understand? Okay, sir. Sorry, please. हिंदी में होगा तो उनको भी समझ में आएगा किस या तो योग का जब जैसे मैंने बताया कि 40 साल से मैं सिस्टमेटिक अभ्यास कर रहा हूँ योग सूत्रों का। तो उन दिनों में जब भी मैंने शुरू किया था तभी मैं अक्सर बोला करता था मेरे दोस्तों को कि कुछ चीजें जो है वो साइक्लिक रहती हैं, आती हैं जाती हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया क्लासिकल म्यूजिक का, आयुर्वेद का। उन दिनों जब मैं जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों में आयुर्वेद बहुत ही डाउन था। कोई आयुर्वेद को ज्यादा पूछता नहीं था, क्लासिकल म्यूजिक को कोई पूछता नहीं था। लेकिन तभी योग के बारे में भी किसी को मालूम नहीं था। तो जब मैंने ऑफिस में अपने कलीग्स को बताया कि मैंने योग ज्वाइन किया है तो सब लोग बोलने लगे तेरे को क्या संन्यास लेना है क्या, जॉब करता है, अच्छा जॉब है, क्यों क्यों ये सब चक्कर में पड़ रहा है। तो एक तो बहुत ही विचित्र बात हुई कि एक बहुत ही पढ़े लिखे सज्जन थे, वो हमारे सुप्रिंटेंडेंट थे। उन्होंने कहा क्या ये सब तुम करते रहते हो, ये सब कुछ काम का नहीं है, काम की तरफ ध्यान दो। तो ऐसी परिस्थितियों में मतलब योग के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी, तो योग सूत्रों के बारे में तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी। योग के बारे में तो चलो एक कोई सिस्टम है, मेडिटेशन का है, आप आसन करते हैं, ऐसी थोड़ी बहुत तो जानकारी थी। लेकिन योग सूत्र क्या है ये तो किसी को भी मालूम नहीं था। और अभी भी जब भी कहा जाता है कि आप क्या स्पेशलाइज करते हैं या किस में आप रुचि रखते हैं, जब मैं बोलता हूँ तो पतंजलि योग सूत्र बोलता हूँ तो वो बोलते हैं अच्छा अच्छा रामदेव वाले पतंजलि। तो उनको अभी भी मालूम नहीं है कि पतंजलि योग सूत्र क्या चीज है। पतंजलि रामदेव ने अपनी इंस्टीट्यूट का नाम पतंजलि रखा, इसीलिए वो पतंजलि वर्ड तो बहुत पॉपुलर हो गया। लेकिन पॉपुलर योग सूत्र क्या है ये अभी भी बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो योग में जो भी हम करते हैं, योग में जो भी हम सीखते हैं, उसका मूल जो आधार है वो पातंजलि योग सूत्र से आता है। तो पातंजलि योग सूत्र ये ग्रंथ है, शास्त्र है। और इस शास्त्र में योग के बारे में सब कुछ जानकारी दी गई है। तो जो भी योग के नाम पे आज चल रहा है वो सब कुछ उसमें है। तो अगर देखें तो आसन जैसे प्राणायाम ये सब ज्यादा चलते हैं, लेकिन आसन प्राणायाम तो बहुत ही छोटा सा भाग है योग सूत्र में। क्योंकि योग सूत्र का संबंध हम लोगों के जीवन से है। और जो भी हम यहाँ पे योग सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे उसमें एक आश्चर्यजनक बात होगी कि हर किसी को उसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जो उसके जीवन में घट रहा है, जो वो जीवन में अनुभव कर रहा है। तो योग सूत्र में वही बातें लिखी हुई है जो आदमी के जीवन से जुड़ी हुई है। और ऐसी कोई भी विचित्र बातें या ऐसी कोई भी बातें, हाँ ये बात है कि उसमें जो संभावनाएं हैं, उसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं हमारी ग्रोथ की, वो पॉसिबिलिटी के बारे में शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोगों में क्या क्या क्षमताएं हैं, हम लोगों में विकास की क्या क्षमता है, क्या सामर्थ्य है, हमारी बुद्धि कैसे काम कर सकती है, हमारा शरीर कैसे काम कर सकता है, ये सब इस सब बारे में हम लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है और जरा भी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी कुछ बातें योग सूत्र में आती है। तो योग सूत्र जब हम अध्ययन करेंगे तो शायद आपको कुछ ऐसी नई बातें सुनाई देगी जो आज तक आपने शायद कभी सुनी भी नहीं रही और कभी सोची भी नहीं रहेगी। लेकिन उनका संबंध जीवन के साथ रहेगा, अपने जीवन के साथ में रहेगा। तो योग सूत्र किसके बारे में बात करता है, हमारे बारे में बात करता है, आपके बारे में, मेरे बारे में, जीवन के बारे में योग सूत्र ये बात करता है। तो योग सूत्र के रचना काल को अगर देखेंगे तो 2500 साल पहले योग सूत्र बनाए गए थे। और जो भी सूत्र साहित्य भारत में है उसमें सबसे प्राचीन जो सूत्र है वो योग सूत्र है। तो सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र का अर्थ ये है कि एक प्रकार की राइटिंग की पद्धत है, ये एक शैली है लिखने की। और जैसे हम लोग देखते हैं कि मतलब अलग अलग प्रकार की शैलियां होती हैं लिखने की, तो शास्त्रों की रचना सूत्र फॉर्म में करने का ये एक विशेष
बात भारत में है जो और कहीं पे और किसी भी ट्रेडिशन में नहीं मिलेगी। तो ये सूत्र क्या है? इवन बाद में बहुत सारे सूत्र आए हैं, गौतम बुद्ध के जमाने से बहुत सारे सूत्र हैं। जैसे हम लोग देखेंगे तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, तो जो पूरे महायान बुद्धिज्म में वो लोग स्टडी करते हैं, हृदय सूत्र, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ऐसे सूत्र बाद में बहुत बने हैं। लेकिन सब मतलब ये सूत्र, पतंजलि योग सूत्र की जो विशेषता है कि ये भारतीय परंपरा में सबसे पुराने सूत्र माने जाते हैं। अब सूत्र का अर्थ क्या है और सूत्र कब लिखा जाता है? तो खास करके अगर हम देखेंगे तो भारतीय परंपरा में 6 शास्त्र माने जाते हैं। कौन से 6 शास्त्र? ये 6 शास्त्रों को फिलोसॉफीज बोलते हैं, दर्शन शास्त्र बोलते हैं। तो हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 108 करीब करीब मुख्य उपनिषद माने गए हैं, 18 पुराण है। हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो रामायण है, महाभारत है। तो ये जो है ये अलग अलग रचनाएं हैं। अब इसके बीच में 6 शास्त्र माने जाते हैं। और ये 6 शास्त्र क्या बताते हैं? जीवन में जो कुछ व्यक्ति की क्षमताएं हैं, व्यक्ति का जो जीवन है उसके बारे में, और ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर या जो भी हमारे आजू बाजू परिवेश है उसके बारे में, और इन सब का अगर कोई रचयिता है, इन सब का कोई अगर क्रिएटर है तो उसके बारे में। तो ये 6 के 6 शास्त्र किसके बारे में बात करते हैं? जीव, जगत और ईश्वर। जीव, जगत और ईश्वर। जीव कौन है? हम जीव हैं। जीव किसको कहते हैं? जिसमें प्रकृति और पुरुष, चेतना और जड़ जगत का मिश्रण हो, और जो चेतना और जड़ जगत से मिलके बना हो उसको जीव कहते हैं। तो हमारे अंदर, हमारे सभी में, जीव में एक चेतना है जिसको पुरुष कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको कई लोग ईश्वर भी कह सकते हैं, जिसको और भी कई नाम दिए गए हैं। तो हमारे सभी के अंदर एक चेतना है, हमारे सभी के अंदर में एक आत्मा है वो। और उसके बाद में जड़ जगत कौन सा है? तो हमारा शरीर जड़ वस्तु से बना हुआ है। हमारे शरीर जो भी कार्य कर रहा है वो जड़ पदार्थ है, क्योंकि उसमें अपना जीवन नहीं है, उसमें चेतना की वजह से जीवन दिखाई देता है। और तीसरी जो है बात, वो ईश्वर के बारे में बात। तो ये 6 शास्त्र उसका अभ्यास करते हैं। तो 6 के 6 शास्त्रों में सूत्र हम लोगों को मिलेंगे। तो जैसे ब्रह्म सूत्र हैं वेदांत के लिए, और जैसे योग सूत्र है, सांख्य सूत्र है, न्याय सूत्र है, वैशेषिक सूत्र है। तो इसी प्रकार से ये सूत्रों की मतलब रचना दिखती है। और सूत्र कब बनता है? सूत्र तब बनता है जब कोई भी चीज का बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद में पूरी तरह से उसके जब सिद्धांत स्थापित हो जाते हैं, एस्टैब्लिश हो जाते हैं, पूरी तरह से उनका सच साबित हो जाता है, जिसको साइंटिफिकली, तार्किक स्तर पे, जिसको हम लोग आर्ग्यूमेंटेटिव लेवल पे लॉजिकली बोलते हैं, लॉजिकली एंड साइंटिफिकली समथिंग व्हेन इट इज गेट्स एस्टैब्लिश, तभी हम बोलते हैं कि हाँ ये बात अभी निश्चित रूप से कही जा सकती। तो जब कोई चीज एकदम निश्चित, तार्किक, वैज्ञानिक तौर पे कही जा सकती है तब सूत्र की रचना चालू होती है। तो योग के बारे में जो भी तार्किक चीजें, जो भी अनुभव से वैज्ञानिक चीजें एस्टैब्लिश हो गई, उनके बाद में सूत्रों की रचना हुई। तो ये जो योग का शास्त्र है, जो पतंजलि योग सूत्रों में आता है, ये शास्त्र की खासियत क्या है? ये पूरी तरह से तर्कपूर्ण है और पूरी तरह से वैज्ञानिक है, और पूरे मानव मात्र के लिए ये सूत्र है। पूरा मानव समाज उसको, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। कई लोगों पे जब भी कोई शास्त्र की बात करते हैं तो एक सवाल आता है कि ये शास्त्र को पढ़ने का अधिकार किसका है, कौन इसका अधिकारी है, और कौन इसको सीख सकता है। लेकिन अगर हम सूत्रों के बारे में देखेंगे, सूत्र किसी में भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं रखता, सभी के लिए। जिसके मन में कुछ जानने की जिज्ञासा है, जिसको अपना जीवन सुधारना है, जिसको अपनी उन्नति करनी है, वो योग योग सूत्रों का अभ्यास कर सकता है। आवश्यकता सिर्फ एक ही बात की है कि वन शुड बी, जिसको वेदांत में बोलते हैं मुमुक्षु, या जिसको हम लोग कहेंगे कि उसमें जानने की इच्छा होनी चाहिए, आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, उन्नति करने की इच्छा होनी चाहिए।
ये अगर व्यक्ति में है तो ऐसा व्यक्ति योग सूत्रों का अभ्यास कर सकता है। और योग सूत्र बहुत ही ब्रीफली लिखे हुए हैं। छोटे से छोटा सूत्र जो है अगर देखेंगे तो 3 अक्षर हैं उसमें, और जो बड़े से बड़ा सूत्र है वो 13-14 अक्षर रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इस प्रकार के कुल 195 स्टेटमेंट्स हैं, 195 सूत्र हैं। 195 सूत्र में जीवन से संबंधित जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, योग के संबंध में जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, वो सभी के सभी सूत्रों में बताई गई। लेकिन वो इतना आसान नहीं है समझना, क्योंकि ये सूत्र लिखे गए थे करीब करीब 2500 साल पहले। 2500 साल पहले ऐसा मानते हैं, पर अभी ये डेट जो है वो डिबेटेबल है। पता नहीं, उससे भी पुराने हो सकते हैं। पर कंजर्वेटिव तौर पे जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो लोग बोलते हैं कि ये 2500 साल पहले लिखा गया। तो 2500 साल पहले लिखा हुआ 3-3 शब्द, 4-4 शब्द, उसका अर्थ हम कैसे समझे? तो उसको अर्थ को समझने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस परंपरा में जिया है, जिसको हर एक शब्द का अर्थ मालूम है। क्योंकि ये जो शब्द हैं ये भी तार्किक हैं, टेक्निकल शब्द हैं, जिसको हम लोग तकनीकी शब्द बोलते हैं। अब तकनीकी शब्द से क्या अर्थ लेना चाहिए? अभी दो अगर स्टॉक मार्केट के व्यक्ति दो बात कर रहे हैं तो वो क्या कहेंगे? मार्केट के बारे में कुछ बात करेंगे, या कोई कंप्यूटर के बारे में जैसे कोई बात कर रहा है तो वो कोई कोई बोलेगा लॉग इन करो। अब ये जो व्यक्ति ने कभी सुना ही नहीं है कंप्यूटर के बारे में कुछ, उसको तो समझ में नहीं आएगा लॉग इन करो ये क्या है, लॉग आउट करो, लॉग इन करो। तो ये तो उसको समझने के लिए उसको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी चाहिए कि जब ये ऑन करते हैं तो उसको लॉग इन बोलते हैं, जब कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो लॉग ऑफ बोलते हैं। तो ये एक टेक्निकल टर्म हो गया। उसी तरीके से अगर सूत्रों की बात करें तो पहला सूत्र है जैसे अथ योग अनुशासनम। ये 3 शब्द है। ये 3 शब्द में बहुत कुछ ज्ञान छिपा हुआ है। तो ये ज्ञान को प्रकट करने के लिए या ज्ञान को समझने के लिए कोई ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो इसको बता सके कि इसका अर्थ क्या है। तो ये पहले तो परंपरागत बातें थी। सूत्र तभी लिखे गए जब उनको मास्टर कर लिया गया। तो ये एक प्रकार का एक इंडिकेशन था, एक प्रकार का रिमाइंडर था कि एक शब्द बोलते ही सब कुछ ध्यान में आ जाना चाहिए। कभी हमको कुछ याद रखने का है तो हम लोग एक क्लू वर्ड रखते हैं अपने पास, तो वो क्लू वर्ड का नाम लेते ही अपने सामने पूरा का पूरा जो हम लोगों ने सोच के रखा है वो ध्यान में आ जाता है। तो एक प्रकार के ये क्लू वर्ड है। अब इस प्रकार की रचना केवल उस समय हुई थी ऐसा नहीं है। अभी हम मॉडर्न टाइम्स में भी देखेंगे तो इस प्रकार की चीजें हम लोगों को दिखाई देती है। आप लोगों में से कुछ लोग फिजिक्स के स्टूडेंट रहेंगे, साइंस में आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना रहेगा, उसके बारे में कभी पढ़ा भी रहेगा। तो फिजिक्स की खास करके विशेषता क्या है? तो जैसे मैंने कहा था कि पतंजलि तो या 6 शास्त्र जो है वो जीव जगत ईश्वर के बारे में बात करते हैं। तो ये साइंटिस्ट क्या करते हैं? आइंस्टीन ने क्या किया? आइंस्टीन ने पूरा अध्ययन किया साइंस का, क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन से चालू होके जब आइंस्टीन तक आया। तो आइंस्टीन ने क्या किया, उसने कहा कि बहुत प्राइमरी चीजें जो है वो यूनिवर्स को बनाती हैं। और वो प्राइमरी चीजें क्या है? तो प्राइमरी चीजें हैं एनर्जी, मैटर, टाइम, स्पेस। ये सब प्राइमरी चीजें हैं। तो उन्होंने अपनी जो पूरी थियरी, जब उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद में कुछ निष्कर्ष निकाला, जब वो एक नतीजे पे पहुंचे कि ये इस ढंग से हम पूरे यूनिवर्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जब उनकी समझ में आया तो उन्होंने हमको एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला क्या था? E = mc²। ये फार्मूला सभी लोगों को जो जिन्होंने भी साइंस पढ़ा है उनको पता रहेगा। तो ये E = mc² में क्या छिपा हुआ है, ये हमको समझ में नहीं आएगा। बहुत लोग तो कुछ 50-60 साल पहले मेरे एक मामा थे, उनके साथ जब बात होती थी तो वो बताते थे कि ये जो आइंस्टीन का जो फार्मूला है ये बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता ये क्या है। क्योंकि E = वॉट, M = वॉट, C = वॉट, ये समझना जरूरी है। उसी तरीके से सूत्रों में ये सूत्र जो है ये इक्वेशंस है।
और एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि सूत्र का पावर क्या है। अभी जैसे मैं आपको कहूं कि H2O कह दिया, तो जिन्होंने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी रहेगी तो उनको तो समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है उसको मैं जैसे ही H2O बोलूंगा तो उसको समझ आएगा कि मैं सामान्य जल की बात कर रहा हूँ, पानी की बात कर रहा हूँ। तो H2O क्या है? ये एक इक्वेशन है, ये एक सूत्र हो गया। ये सूत्र, उसको एक्सपांड करेंगे तो उसमें बहुत ज्ञान मिलेगा। जब उसको हम लोग भाषा में लिखेंगे तो कैसा होएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो चीजें, दो तत्व हैं। ये दो तत्वों से बना के एक कंपाउंड, एक मिश्रण बना है, जिस मिश्रण को कहेंगे पानी। तो पानी एक मिश्रण है जिसको H2O की परिभाषा दी गई है, H2O का सिंबल दिया गया है। तो सूत्र कुछ कुछ ऐसे ही हैं। हर सूत्र को एक्सपांड करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला काम जिसका था, जिन्होंने इसके ऊपर, पहले तो परंपरा से था। हम जब किसी परंपरा में रहते हैं तो हमको सब शब्द हम समझ में आते हैं, लेकिन एक बार परंपरा से बाहर गए तो समझ में नहीं आएगा। तो उसको बाद में धीरे धीरे परंपराएं भी बदलने लगी। तो पतंजलि ने जो बनाया था उसको समझाने के लिए महर्षि व्यास ने एक भाष्य लिखा। भाष्य है, उसको कहते हैं कमेंट्री। हर सूत्र को समझाने के लिए उन्होंने एक कमेंट्री लिखी जिसको कहते हैं व्यास भाष्य। उसको योग भाष्य भी कहते हैं। तो हम जो अध्ययन करेंगे उसमें पातंजल योग सूत्र के सभी शब्दों का देखेंगे अर्थ, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उसको हम कैसे जीवन में उतार सकते हैं वो देखेंगे, और व्यास भाष्य उसको कैसे समझा, इसको भी हम लोग देखेंगे। व्यास भाष्य के जो बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लोगों को समझनी है कि सूत्र जब हम पढ़ते हैं तो उसको व्यास भाष्य के साथ में ही पढ़ते हैं। अदरवाइज अगर हम एक एक सूत्र को देखेंगे तो हम भटक जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा क्या बात कर। तो एक दिशा जो हमको मिलती है वो व्यास भाष्य से मिलती है। तो हम जो पढ़ाई करेंगे, जो अभ्यास करेंगे, उसमें सूत्र भी आएंगे और व्यास भाष्य भी आएगा। अब इसके बारे में, सूत्रों का इंपॉर्टेंस के बारे में अगर बात करें तो आज बहुत मजेदार बात हुई। परसों शाम को ही किसी ने मुझे एक किताब के बारे में पूछा कि सर ये बुक मिल रही है, मैं ले लूं क्या? ये योग सूत्रों के ऊपर बुक है। तो मुझे याद आया कि मेरे पास भी वो पुस्तक पड़ी हुई है, तो मैंने निकाला और मैंने उसको बताया कि हाँ आप ले लीजिए क्योंकि ये अच्छी पुस्तक है। तो ऐसे वो उसके साथ बात खत्म हो गई, लेकिन फिर मैं वो पुस्तक को देखने लगा तो अचानक से मेरे ध्यान में कुछ बातें आई, तो मैंने उसको मार्क कर लिया। और आज जब भी मैं ऐसे ही दोपहर को कुछ विचार कर रहा था तो मेरे मन में आया कि आई कैन रीड अ पैसेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक फॉर टुडेज इंट्रोडक्शन। तो वो मैंने पैसेज मार्क कर लिया। आज ही की बात है। तो मैं, ये सूत्र का इम्पोर्टेंस क्या है और ये सूत्र का महत्व क्या है, इसके बारे में छोटा सा एक पैसेज है, दैट आई विल रीड टू यू। इट इज इन इंग्लिश बट आई विल एक्सप्लेन टू यू इन हिंदी ऑल्सो। तो पहले वो थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में हम देखेंगे इसको। ये पुस्तक लिखी हुई है एक स्वामी वेद भारती बोल के हैं। हिमालय ट्रेडिशन, जो हिमालय के जो संत हैं, उनके हिमालय के जो संत हैं उनकी ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। इनका वास्तविक नाम था पंडित उशर बुद्ध आर्य, और बाद में ये उन्होंने संन्यास लिया या इनिशिएट हुए, वहाँ पे दीक्षा लिया, तो उसके बाद में उनका नाम हो गया स्वामी वेद भारती। तो दोनों नाम से उनकी बुक्स मिलती हैं। तो उनके पार्ट 1 प्रोलॉग में ही बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन टू योग सूत्र। उन्होंने क्या लिखा है? इफ ऑल द वास्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडियाज फिलोसॉफीज एंड लिटरेचर्स were to vanish and the Yoga Sutras of Patanjali alone were to be saved, each of those philosophies and literature could in time be created again. They could be created again not because their details or even basic formula appear in the Yoga Sutra, but because these sutras form the manual of yoga practice, the culmination of which is that process of intuitive knowledge which alone constituted the source of almost all of India's philosophies and literature.
if there were to survive only one single yogi who has reached samadhi, all the Vedas, Upanishads, and Bhagavad Gita would again flow from this his mouth, indeed in a new form, and to repeat all the principles of Ayurveda, dance, drama, music, medicine, dramaturgy, poetics, and rest would be recreated. A whole new civilization paralleling the experiences of India's civilization would come to exist and would nourish ever fresh streams of spirituality in all the then existing or future civilizations of the world. So, crux of this, what I read is that if everything, all literature was to vanish, all the Vedas and all the scriptures were to vanish, and only if one book survived, that is योग सूत्र, बाकी सब कुछ भी नष्ट हो जाए लेकिन एक ही किताब अगर सरवाइव हो जाए जो कि योग सूत्र है, तो फिर ये संभावना है कि योग सूत्रों के माध्यम से हर चीज नए तरीके से फिर से पुनः जागृत की जा सकती है, पुनः निर्मित की जा सकती है। ये क्षमता योग सूत्रों में है। तो अब सवाल आता है कि अगर ऐसी क्षमता योग सूत्र में है तो क्या हमारे अंदर भी ये क्षमता आएगी? तो अब इसके बारे में एक ही बात है कि अभ्यास करना एक चीज है। किसी भी चीज को समझते हैं जब हम उसको, तो एक है इंटेलेक्चुअल लेवल पे उसको समझना, एक है बौद्धिक स्तर पे उसको समझना। तो बौद्धिक स्तर पे तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, हम सभी जो अभी यहाँ पर हैं उसमें से मुझे नहीं लगता कि बौद्धिक स्तर पे जानकारी का कोई अभाव किसी के पास है। हर व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, हर व्यक्ति को पता है कि मेरा भला किस में है, हर व्यक्ति को पता है कि मेरा नुकसान किस में है, हर व्यक्ति को पता है कि मुझे अपनी उन्नति के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हम करते हैं? मालूम तो सब है। तो कभी कभी हमारी अवस्था ऐसे व्यक्ति जैसे रहती है जो सिगरेट का पैकेट खोलता है, उसके ऊपर वार्निंग पड़ता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, और ये पढ़ने के बाद में सिगरेट निकालता है और सुलगा के पीने चालू कर देता है। तो क्या कहेंगे, उसको क्या ज्ञान का अभाव है? क्या उसको जानकारी नहीं है? जानकारी होते हुए भी अगर वो सिगरेट पीता है तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कभी कभी थोड़ा छोटा करके देखते हैं, लेकिन वास्तव में उसको छोटा करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी कई बार ऐसे ही बिहेव करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारा बिहेवियर रहता है। हमको पता है कि ये चीज हमारे लिए नुकसानदायक है, हमको पता है कि ये चीज हमको अच्छी दिशा में नहीं ले जा सही, हम लोगों को बुरे अनुभव आएंगे, उसके बावजूद भी हम वो करते हैं। तो ज्ञान का अभाव नहीं है। उसी तरीके से जब हम योग सूत्र का अभ्यास करेंगे तो बहुत सारा ज्ञान हमको मिलेगा, लेकिन ज्ञान फलीभूत कब होगा? जब हम उसको प्रैक्टिकली अपनाएंगे, अपनी प्रैक्टिसेस में उसको लाना चालू करेंगे। तो एक लक्ष्य जो हमारे क्लास का यहाँ पे रहेगा वो ये रहेगा कि न केवल हम उसको योग सूत्रों के अध्ययन करें बौद्धिक स्तर पर, उसको समझें बौद्धिक स्तर पर उसको जीवन में कैसे उतारें, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको कैसे अपनाएं, कैसे हम उसका फायदा उठाएं। क्योंकि जानकारी तो है, लेकिन जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है, जानकारी का उपयोग कैसे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस दृष्टि से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। अभ्यास के दो तरीके हैं, जैसे मैंने कहा कि एक बौद्धिक स्तर पे है, लेकिन बौद्धिक स्तर को जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो सिद्ध नहीं होने वाला है। हठयोग प्रदीपिका में एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है, चैप्टर 1 में सूत्र 66वां, श्लोक 66वां। वो क्या बोलता है? नवेश धारणम सिद्धे, नवेश धारणम सिद्धे, कर्णम न तत् कथा, कर्णम न तत् कथा, क्रियेव कारणम सिद्धे, सत्य में तन्न संशय। इसका मतलब क्या है? वेश धारने से कोई सिद्ध नहीं बन जाता। हमने गेरुए वस्त्र डाल लिए, बाल बढ़ा लिए, जटाएं रख ली और कमंडलू धारण कर लिया, दंड उठा लिया, तो उससे हम लोग सिद्ध हो गए, ऐसा नहीं होता है। केवल वेश धारण करने, और
फिर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, रोज हम लोग मिलते हैं, पतंजलि योग सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं, शास्त्रों पे चर्चा कर रहे हैं, रामायण के बारे में बात कर रहे हैं, महाभारत के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बात करने से तो कुछ होगा नहीं। तो कथा करने से भी उसका कारण क्या है, सिद्धि कब मिलेगी, हम लोग सफल कब होंगे, जब उसका अभ्यास करेंगे, जब उसको जीवन में उतारेंगे तब। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जिन लोगों को वास्तव में इसको समझना भी है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, और इसको जीवन में उतारना भी है, तो उनके लिए शायद ये क्लास काफी फायदे की हो सकती है। तो वो निर्णय कर सकते हैं कि, लेकिन ये हार्ड वर्क है इसको। जैसे एक जगह पे शास्त्र में कहा गया है कि योगी का जीवन जो है वो छुरी की नोक धार पे चलने जैसा है। योगी का जीवन जो है वो तीखी छुरी की धार पे चलने जैसा है, थोड़ी गलती हुई नहीं कि वो गिरेगा और कट जाएगा, ऐसा उसका जीवन है। तो ये हार्ड वर्क है, बहुत मेहनत का काम है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि 40 साल होने को आ गए सिस्टमेटिक अभ्यास करते हुए। तो सिस्टमेटिक अभ्यास का अर्थ क्या है, मैं गुरु से सीखना, जो व्यक्ति इसका अनुभव कर चुका है, जो व्यक्ति इसको जानता है, जो व्यक्ति इसके अनुसार जीवन जीता है, ऐसे व्यक्ति से योग सूत्र सीखना, इसको कहेंगे सिस्टमेटिक अभ्यास। तो ये मेरा कब चालू हुआ, ये चालू हुआ 1986 फरवरी से। 1986 फरवरी में मैंने पहली बार सिस्टमेटिकली अपने गुरु के मुंह से सूत्रों के बारे में अध्ययन सीख करना चालू किया। और पहला सूत्र मुझे याद है, पहला सूत्र कौन सा किया था, चैप्टर 2 का 6वां सूत्र। ये मेरा पहला सूत्र था उनके साथ में। और आश्चर्य की बात यह है कि मुझे समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, और मैं खुद आश्चर्य कर रहा था कि मुझे कैसे समझ में आ रहा है। तो समझ में इसीलिए आ रहा था कि 1981 82 81 के आसपास मैं 2 साल तक खार में काम करता था। तो अक्सर मैं रामकृष्ण मिशन में चले जाया करता था, और पढ़ने का बहुत शौक था। तो उसी दौरान या उसके 1-2 साल के बाद में ऐसे ही अचानक मैं गया रामकृष्ण मिशन में, बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं वहाँ पे। तो देखते देखते अचानक मेरी दृष्टि गई योग सूत्र पे। एक छोटा सा ग्रे कलर का बुक था, उस पतंजलि योग सूत्र के ऊपर, टाइटल उसका योग सूत्र था। पता नहीं क्यों मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कुछ भी नहीं। पर पता नहीं क्यों मैंने वो बुक ले लिया, वो पुस्तक ले लिया। और पता नहीं कौन सी प्रेरणा थी, शायद कुछ रहेगा, कुछ वो जिसको बोलते हैं प्रारब्ध या कुछ कर्मों का रहेगा। तो पढ़ना चालू किया, और बिना समझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। आठवतं तुला ब्युटी वरून पप्पांची, तो फिर भी पप्पांकडे मी किती पढ़ना रडले माझी चालू हाईट किया, नाही म्हणून. और थोड़ा थोड़ा जब पढ़ने लगा तो थोड़ा समझ में भी आने लगा। तो पहली बार जब सूत्र मैंने सीखना चालू किया, तो वो जो 6ठा सूत्र है, वो हमारे अहंकार के बारे में बात करता है, ईगो। दृग दर्शन शक्तयोरेकात्मतेवा अस्मिता, ये सूत्र है। तो हमारा अहंकार, हमारा ईगो, ये किस चीज से बना हुआ है, इसके बारे में वो सूत्र था। और आश्चर्यजनक बात है कि पूरा तो समझ में नहीं आया रहेगा, लेकिन 10 15 20% जो भी मुझे समझ में आया, वो भी आश्चर्यजनक बात थी कि क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट इतना जाग गया कि उसके बाद में कभी मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद में जब तक डॉक्टर जयदेव योगा इंस्टीट्यूट में सूत्र सिखाते थे, तब तक मैं जाके उनके पास योग सूत्र सीखता था। हर शनिवार को करीबन 30 32 साल, हर शनिवार को जाके मैं उनका क्लास अटेंड करता था और उनसे सूत्र सीखता था। जब उन्होंने सूत्र सिखाना बंद किया, उसके बाद में भी उनके साथ में संग पर था। तो तब तक तो मैंने भी बहुत जगह पे क्लासेस, मैं पतंजलि योगा इंस्टीट्यूट में भी 7 मंथ्स टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में मैं ये सूत्र ही सिखाता था। तो सूत्र सिखाता था, तो कभी भी कोई शंका आती थी तो उनके पास जाके मार्गदर्शन मिल जाता था। तो ये सिस्टमेटिक स्टडी उनके साथ में हुई। अब थोड़ा सा मतलब ये अपने बारे में अगर मैं बात करूं, अपने बारे में बात करने का, अब देखिए संबंध कैसे होता है। अपने बारे में बात करने का मतलब अस्मिता, अहंकार, ईगो।
लेकिन उस दृष्टि से इसको नहीं देखना है। ये अपने बारे में मैं इस दृष्टि से बात कर रहा हूँ कि मैंने क्या पाया। आप बोलेंगे आप 40 साल से आप अभ्यास कर रहे हो, उसके पहले आपने 5 साल ऐसे ही पर्सनली स्टडी किया, तो इसका आपको फायदा क्या हुआ? नेचुरली ये सवाल मन में आएगा। इसीलिए मैं अपने बारे में बात करूंगा। और इसीलिए मैं कहूंगा कि मतलब मैं तो, मेरा क्वालिफिकेशन तो बीए था, बीकॉम था। बीकॉम वाला आदमी सूत्र में चले गया, और बीकॉम तो मतलब ऐसा कॉमर्स का पूरा विषय है। लेकिन वो सब होते हुए भी जब मैंने योग सूत्र सीखना चालू किया, तो जीवन के मेरे जितने भी स्तर हैं वो सभी के ऊपर मेरा परिणाम होना चालू हो गया। तो आज मैं अगर मैं कहूँ कि मेरे जीवन में मैंने अगर कुछ बहुत अच्छा अनुभव किया है, कोई अच्छी बातें मैंने कुछ कर पाया हूँ, या अच्छी चीजें जो मैं अनुभव कर पाया हूँ, ये सब का सब श्रेय जो है वो योग सूत्र को जाता है। क्योंकि योग सूत्र में जो शिक्षा है उसको अगर थोड़ी भी मात्रा में अगर हम जीवन में लाना चाहें, तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। तो बहुत सारी एरियाज हैं। जैसे मैं सोचते बैठा था कि आप लोगों से अगर बात करनी है तो किस विषय में, किस हमारे लिए कौन से विषय परेशानी के रहते हैं, हमारे जीवन में कहाँ से प्रॉब्लम्स आते हैं, इस बात की अगर थोड़ी सी चर्चा करें, तो कई बार हम लोगों का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रहता है, दिशा नहीं रहती है, जीवन की दिशा नहीं रहती, किस दिशा में जीवन जा रहा है इसके बारे में हम लोगों को कुछ मालूम नहीं रहता है। स्वास्थ्य को लेके हम लोग परेशान रहते हैं, और स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो है भावनात्मक स्वास्थ्य। अगर हमारी भावनाएं सही नहीं है, अगर इमोशनल मैनेजमेंट हमारा सही नहीं है, अगर निगेटिव इमोशन हमको परेशान करते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होते हुए भी हमारी उन्नति संभव नहीं है। क्योंकि ये जो इमोशंस हैं ये हमारे आड़ में आते हैं और हमको रोकते हैं। इनके साथ में हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। तो इसके इसके अलावा और एक स्वास्थ्य होता है, सामाजिक स्वास्थ्य। हमारी रिलेशनशिप कैसी है, भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, दोस्त, कलीग्स। ये रिलेशनशिप दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कम फ्रॉम दीज एरियाज। तो इन सब की उन्नति, ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो योग सूत्रों में हम इन सभी का अभ्यास करेंगे, और इन सभी का इस्तेमाल कैसे करना है ये हम लोग सीख सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, जीवन के कौन से पहलू को ये प्रभावित करता है। तो इसके बाद में जीवन दिशा, मैंने कहा पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ, अर्थपूर्ण जीवन, निर्देश्य जीवन। नॉर्मली तो देखते हैं हम लोग, लाखों करोड़ों लोग हैं। अगर हम कंपेयर करें पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, और इतने सारी इतनी बड़ी जनसंख्या में हम एक कहीं पे दुनिया के एक कोने में पड़े हुए हैं। तो हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, हमारे जीवन का अर्थ क्या है, और किस प्रकार से वो जीवन जीना है, इसके बारे में भी अगर विचार करेंगे, तो क्या पर्पस है लाइफ का, और हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो नॉलेज है, अपने बारे में हम कितना जानते हैं, दुनिया के बारे में हम कितना जानते हैं, ईश्वर के बारे में हम कितना जानते हैं। ईश्वर, दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम तो छोटे हैं, अपने शरीर में समाये हुए हैं, अपने मन के साथ है। हम अपने बारे में कितना जानते हैं? हार्डली। अगर सही में विचार करके देखेंगे, हमको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमको ये जानकारी नहीं है कि कब हम चिढ़ते हैं, कब हम खुश होते हैं, क्यों हम खुश होते हैं, क्यों हम चिढ़ते हैं, क्या क्या मोटिवेशंस है, और हमारे दुराग्रह कैसे हैं। ये जो वी मोस्ट ऑफ अस आर इनहिबिटेड, वी आर बायस्ड इन मेनी वेज, so many layers of wrong thinking, wrong perceptions, wrong attitudes we have gathered in our mind, and we are subject to that, we are guided by that, we are regulated by that, and that limits us। वो हमको छोटा कर देते हैं, वो हमको बांध लेते हैं। इसकी संभावना जब खुलती है, जब दिखाई देती है, तब व्यक्ति बहुत इस दिशा में भी उन्नति कर सकता है। उसके बाद में हमारी कार्य क्षमता, कैसे हम काम करते हैं, वर्क के प्रति हमारी एटीट्यूड क्या है, हाउ डू वी वर्क, व्हाट इज अवर एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क,
हमारी कैपेसिटी कितनी है। नॉर्मली तो हम हमारे जो निगेटिव थॉट्स रहते हैं वो हमारी कैपेसिटी को एकदम रिस्ट्रिक्ट करके छोटा कर देते हैं। हमारे में धैर्य कितना है, मानसिक क्षमता कितनी है, स्ट्रेस लेने की क्षमता कितनी है, ये सब चीजें, हमारी एकाग्रता कैसी है, ये भी एक बहुत कोई भी चीज काम करेंगे तो उसमें एकाग्रता जरूरी है। और सिंगल माइंडेड अप्रोच, सिंगल माइंडेड एक्शन, पर्पसफुल एक्शन, ये बहुत जरूरी है सफलता पाने के लिए। तो क्या हम ऐसा कुछ करते हैं जिसमें जो भी हमने निर्णय लिया कि ये मैं करूंगा वो कर लेते हैं और सफलता प्राप्त प्राप्त होती है? होती है नहीं, ये विचार करने वाली बात है। उसके बाद में आर्थिक, मनी इज अ बिग थिंग, मनी मैटर्स अ लॉट। तो ऐसा नहीं है कि योग सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं, अध्यात्म का अभ्यास कर रहे हैं तो पैसा छोड़ देना है। पैसा जरूरी है, अर्थ भी जरूरी है। तो अर्थ के साथ हमारा संबंध कैसा है, पैसे के साथ हमारा संबंध कैसा है? आर वी कंफर्टेबल विथ मनी? आर वी अर्निंग इनफ? शुड वी अर्न इनफ? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड डू वी हैव दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी? और एक भी दो दिशा, एक एक है वो स्ट्रगल कर रहा है, पैसा मिल ही नहीं रहा है, और एक है वो कमाए जा रहा है, कमाए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ रुकूंगा। दोनों में गलतियां हो जाती है। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रुकूं, वो तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता, वो तो वेस्ट कर रहा है लाइफ। और जो कमा ही नहीं पा रहा है वो इसीलिए वेस्ट कर रहा है कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डायरेक्शन, अपनी जीवन को कैसे दिशा देना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है हमारे अंदर, कोई चीज़ हम करें, कोई हमारे में कार्य क्षमता है, उसके बाद में भी अगर आत्मविश्वास नहीं है तो हम नहीं करेंगे, उसको नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीजें, मतलब ये जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद में मन की शांति, सुख का अनुभव, बहुत महत्वपूर्ण। अगर मैं आपसे पूछूं सुबह से लेके आज तक आपने क्या किया है, क्या उत्तर रहेगा? हर कोई खुशी ढूंढ रहा है, हर कोई शांति खोज रहा है, हर कोई सुख खोज रहा है, विदाउट एक्सेप्शन। तो अगर ये सच है तो आज हम लोगों ने कितना सुख पाया, आज हम लोग कितना खुश रहे, आज हमने कितनी शांति का अनुभव किया? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर हमको योग सूत्रों में मिल सकता है। और ये सब, ये तो मैंने बहुत छोटी छोटी बातें कही, इसकी अगर विस्तार में जाएंगे तो बहुत विस्तृत बात हो जाएगी। एक एक एस्पेक्ट को अगर हम लेके बात करें तो जीवन में कहाँ रुकावटें आ रही है, कहाँ हम अटक रहे हैं, कहाँ वीकनेस आ रही है, क्यों हम दुखी हो रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। ये मेरे जीवन में मैंने जो फायदे उठाए योग सूत्र के अभ्यास से, जैसे मैंने कहा कि कुछ अगर अच्छा हुआ है तो उसका बहुत सारा श्रेय जो है वो योग सूत्रों को जाता है। ऑफ कोर्स बाकी के चीजें जो भगवान ने दी हैं, अपना शरीर है, सही सोचने की क्षमता के लिए जो मन दिया है, ये सब तो है ही। लेकिन ये मन है, ये शरीर शरीर है, ये जो क्षमताएं हैं, इनको किस दिशा में ले जाना है, किस दिशा में इसका इस्तेमाल करना है, ये सब सीखना बहुत जरूरी है। तो ये सीखने में हम लोगों को योग सूत्र बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनली मैंने आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि जो 40 साल पहले जब मैंने वो पहला सूत्र सीखा, उसके बाद में देर वॉज नो टर्निंग बैक। देर वॉज नो, उसके बाद में करीबन 10-12 साल तक तो मैंने और सब चीज़ों का पढ़ाई बंद कर दिया। कुछ भी नहीं पढ़ता था मैं, जो कुछ भी पढ़ता था केवल योग सूत्र से संबंधित पढ़ता था। या तो फिर जब एनसाइक्लोपीडिया पे हम लोग रिसर्च वर्क कर रहे थे तो डॉक्टर जयदेव मुझे बोलते थे ये पढ़ो और इसमें से कुछ जिस्ट निकालो, ये पढ़ो ये पढ़ो, कुछ बताते थे, तो उन्होंने जो जो पढ़ने के लिए कहा वो सब मैं पढ़ता था। तो ये सिलसिला करीबन 15 साल तक चलते रहा। उसके बाद में तो फिर सूत्र सिखाना ही चालू कर दिया योगा इंस्टीट्यूट में। टिल 2017 जनवरी मैं 7 मंथ्स टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में रेगुलरली योग सूत्र सिखाता था। 2017 के बाद में थोड़ा हेल्थ इश्यूज और कुछ कारणों से मैं वहाँ से रुक गया, लेकिन अभी भी उसके बाद में कुछ स्पेशल कोर्सेज चलते थे योगा इंस्टीट्यूट में। कोरोना के पहले 1918 में 2018 में स्पेशल साधकों के लिए योग सूत्र के क्लासेस किए। तो उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, जो समाधिपाद साधनापाद, 2020 तक वहाँ पे मैं लेता रहा। अभी भी बीच बीच में कोई आते हैं तो योग सूत्र के ग्रुप्स हैं,
उसमें योगा इंस्टीट्यूट के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में सूत्र का चलता है। अभी लास्ट 26 जून को मैंने एक चैप्टर 3 विभूतिपाद का कंप्लीट किया। उसमें बड़ा ग्रुप था, उनके साथ में चैप्टर 3 कंप्लीट किया। अभी चैप्टर 4 बाकी है, तो अभी देखेंगे कब शुरू होगा। तो इन द मीन वाइल सुषमा ने मुझे अप्रोच किया, सर यहाँ पे ऐसा ऐसा सूत्र का चल रहा है, तो आप लेंगे क्या? तो अच्छी बात है, मतलब एक तो अ, एकदम ही टोटली नए लोगों के साथ में सूत्र करने का मजा अलग है। इसीलिए अलग है क्योंकि जिनको ऑलरेडी बैकग्राउंड है उसको तो इम्पोर्टेंस मालूम है, लेकिन जिसको कुछ भी मालूम नहीं है उसको ये जानकारी देना और उसको प्रेरित करना, उसको प्रेरणा देना ताकि वो कुछ करे, कुछ आगे बढ़े, ये एक बहुत महत्व की बात है। तो मेरे लिए तो मतलब बहुत अच्छा है ये। और मेरा तो अभी जीवन की दिशा भी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत सामर्थ्य है वो इसी दिशा में है कि जितना हो सके ये सब बातों को लोगों को सिखाना या लोगों को बताना, ये बहुत महत्व का बात है। और इसका जैसे मैंने अपने जीवन के बारे में बताया एक उदाहरण के तौर पे कि मैं मुझे कैसे फायदा हुआ, ऐसे ही शायद सुषमा भी आपको बता सकेगी कि उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आया है। कि सुषमा ने जब भी वो पहली बार, मुझे याद है कि जब भी मैंने इनका पहला क्लास लिया था, समवेयर इन 2016 की बात है शायद, 2016, अभी 10 साल होने को आ गए। तो शी हैड ज्वाइन पीजी डिप्लोमा इन सोमैया कॉलेज। तो पीजी डिप्लोमा में मैंने वहाँ पे उनको सूत्र और सांख्य सिखाया था। तो शी ऑल्सो एक्सपीरियंस सर्टेन थिंग्स, तो शी कैन ऑल्सो शेयर विथ यू। दैट विल बी अ गुड थिंग इफ शी कैन शेयर समथिंग। Yes, I remember that the very first class. क्योंकि जब मैं योग के बारे में प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छे से मैं Ma'am, your voice is not clear. It is echoing. माय वॉइस Yes. ओके नाउ इज ओके It's like some kind of echo is there. ओके लेट मी यूज इट am I audible now Yes, ma'am. ओके सर से मैं 2016 में जब मैं मिली थी उसके पहले भी मैंने योगा के बहुत सारे कोर्सेज कर लिए थे और उसके बहुत सारी थियरी प्रैक्टिकल तो बहुत सालों से था लेकिन थियरी भी उसके पहले मैंने 2 साल मुंबई यूनिवर्सिटी से भी जो डिग्री है वो ले लिया था। लेकिन जो पुरुष और प्रकृति ये दो कॉन्सेप्ट है वो कभी समझ नहीं आया था मुझे। तो मुझे लगा अगला मैं कुछ कोर्स करने जाऊं तो शायद मुझे ऐसा भी लगने लगा था कि शायद ये जो थियरी नॉलेज है योग में प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छा है लेकिन जो थियरी पार्ट है शायद मुझे समझ में नहीं आएगा क्योंकि फिलोसफी इतनी ज्यादा थी। जो टीचर्स मेरे सामने आते थे वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे या इतना ज्यादा फिलोसफिकल होता था कि डेली लाइफ से उसका कुछ रिलेवेंट नहीं होता था। और फिर ऐसा लगता था शायद मैं इसके लिए नहीं हूं या मुझे शायद ये समझ में ना आए। तो सर की क्लास में जब मैं गई तो मैंने सर को बोला सर मुझे समझ में नहीं आता ये फिलॉसफी तो अगर मुझे समझ में आया तो ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। सर ने कहा कोई बात नहीं आप बैठ जाओ। और वो पहले ही सेशन में सर ने पुरुष और प्रकृति ये कॉन्सेप्ट समझाया था। और जो मैं पिछले 3 सालों से उस टॉपिक को पढ़ती थी मैं कोर्स पास हो जाती थी पूरा है ना अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे पर वो जो कॉन्सेप्ट है वो समझने का जो श्रेय जाता है वो सर ने इतना अच्छे से एक ही लेक्चर में मुझे समझा दिया था कि पुरुष क्या है प्रकृति क्या है। अभी जहाँ पे जिन लोगों ने टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया है दे हैव लिटिल नॉलेज अबाउट पुरुष एंड प्रकृति। ओके और वो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये पूरी दुनिया कैसे समझ में आ जाती है बिल्कुल वैसा ही था। तो इसीलिए मैं सर के लिए हमेशा बहुत ग्रेटफुल रहती हूँ कि उन्होंने मुझे समझना सिखा दिया कि ये फिलॉसफी है क्या। क्योंकि अगर फिलॉसफी में जो मेन कंटेंट है वही समझ नहीं आया तो आगे की चीजें आप स्टोरी से रिलेट नहीं कर पाते हो। और अगर आपको दो कैरेक्टर ही समझ में आ गए तो फिर आपको पूरी रचना समझ में आ जाती है वो वैसा ही था। तो मैं सर के लिए हमेशा ग्रेटफुल हूँ और सर मेरे मेंटर भी है।
और इससे अच्छा चांस मुझे नहीं मिला कि सभी लोगों ने जब कहा कि योग सूत्र सीखना है तो मुझे लगा सर से सीखना सबसे अच्छा रहेगा। और सर का जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। योग सूत्र बहुत सारे टीचर आपको सिखा सकते हैं और आप सीख भी सकते हो। थ्योरेटिकल बहुत सारा नॉलेज मिलेगा आपको, लेकिन उसको प्रैक्टिकल डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। हमारे जो क्लेशाज है, क्लेशाज हो गए, लेकिन अब क्लेश को दूर करने के उपाय हम उसको बहुत ही आसान शब्दों में या उसे बहुत आसानी से समझने के लिए, तो मुझे लगता है सर की एक्सपर्ट ही है उसमें। तो हम उसको वहां से सीख सकते हैं कि डेली लाइफ में योग सूत्र को कैसे अप्लाई करें। और फिर से मैं बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ सर, आपने ये शुरुआत जो कर दी है ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है हम सभी के लिए। फिर से थैंक यू सो मच सर, ये सेशन स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पे जितने सब आए हैं मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि आप आए और आपने सुना। सर 2 मिनट में लेना चाहूंगी क्योंकि अभी सभी प्रेजेंट है, बाद में हम क्वेश्चन आंसर के लिए जा सकते हैं। जैसे सभी को ऑलरेडी पता है, आप किसी ना किसी कांटेक्ट से ही यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। तो ये जो योग सूत्र है ये 1 ईयर तक चलने वाला है, 1 साल तक। और 4 चैप्टर में से सिर्फ पहला चैप्टर कंप्लीट होगा ये 1 साल में। और एवरी फ्राइडे टाइम रहेगा 7 to 8। और इसके लिए जो फीस है वो 6,000 है। और अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको एक अलग फॉर्म भरना है, और अगर जिनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उसके लिए अलग फॉर्म है। इन केस आपको लगता है मैं बाद में जाके डिसाइड करूँ कि मुझे एग्जाम देना है, सर्टिफिकेट लेना है, तो आप पहले से फॉर्म भर दीजिए। लास्ट मोमेंट पे अगर एग्जाम नहीं देंगे तो भी चलेगा, सिर्फ एक फॉर्म भरना है आपको उसके लिए। क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपका जो इवैल्यूएशन है पूरे थ्रू आउट द ईयर वो रहेगा, अटेंडेंस आपकी मार्क होगी, और आपको एक छोटा सा एग्जाम देना होगा, उसके बाद आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं योग सूत्र का। और मुझे लगता है इतनी इंफॉर्मेशन एनफ है। और जिन लोगों ने नहीं लिया एडमिशन, आप नेक्स्ट फ्राइडे के पहले एडमिशन लेंगे तो बहुत अच्छा है। और सर ने मुझे कुछ बुक्स भी भेज दी है, पीडीएफ भेजा है। जिनको हार्ड कॉपी लेनी है उसके लिए भी मैं आपको भेज दूंगी, आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं या सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं प्रिंट आउट लेके। तो मेरी तरफ से इतना ही इंफॉर्मेशन है। अगर किसी को कुछ और पूछना है सर से तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, अनम्यूट प्लीज। जो भी मैंने कहा उसके भी बारे सर में। आपके 1 मिनट। ब्रेक हो रही हाँ है। सॉरी, हाँ सर, प्लीज रिपीट सर। आई डोंट नो। अच्छा अभी कैसे? आ रहा है, आवाज आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, आ रहे हैं। तो जो भी मैंने आप लोगों को सूत्रों के बारे में बताया उसके बारे में कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन या कुछ भी जानकारी, या कुछ भी मैंने कहा उससे संबंधित, या आपके मन में योग सूत्रों को लेके कोई शंकाएं हैं, तो आप निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं। कुछ भी सवाल है तो। वंदना जी, पूछना है आपको? यस यस मैम। हाँ। हाँ नमस्ते सर। पूछिए। नमस्ते नमस्ते। मुझे ये पूछना था कि ये जो योग सूत्रस हम पढ़ेंगे इसमें प्रैक्टिकल वर्जन जो आपने कहा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर बाय वी विल बी एबल टू अप्लाई इनटू आवर लाइफ, तो वो पार्ट ही ज्यादा रहेगा। और एज ए सूत्रा मुझे बहुत पहले से बहुत इंटरेस्ट है कि एज ए सूत्रा मुझे और डीपर जाना है। तो लाइफ इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जो बोला है वो पार्ट तो रहेगा, बट जैसे वो एंशियंट विजडम का एक मतलब एक सीकिंग है, तो विल दैट बी सेटिस्फाइड इन योर सेशंस? 100%। क्योंकि उसका एक लॉजिक ये है कि जब तक वो जो एंशियंट विजडम है उसको समझेंगे नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यस। तो एप्लीकेशन के पहले समझना जरूरी है। आप एक सोच के देखो यस। कि कोई भी चीज हमको जब समझ में नहीं आती तो हम नहीं करते। जब समझ में यस। आती है और जब हमको लगता है कि ये अच्छी है, ये करना चाहिए, तभी हम उसको करते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं करते हैं। तो शास्त्र इसको, इसीलिए मैंने कहा दो भाग है।
एक तो शास्त्रीय जानकारी कि टेक्निकली क्या क्या हो सकता है, और इसमें भी जब भी हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें एंशियंट विजडम में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग अभी की स्थिति में अप्लाई भी नहीं कर सकते, यस ये यस, जानकारी मिलेगी। जैसे इसीलिए मैं वो पूछ रही थी। यस, हाँ आई हाँ हाँ, बिल्कुल एग्री बिल्कुल। विथ। यस तो सर। जैसे जैसे समाधि, अब समाधि के हाँ बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, समाधि क्या है, पूरी जान, संप्रज्ञात समाधि क्या है, असंप्रज्ञात समाधि क्या है, गुण क्या है, सत्व क्या है, रजस क्या है, तमस क्या है, ये सब जानकारी मिलेगी। लेकिन इसका सभी का अनुभव इमीडिएटली कर पाएंगे ऐसा नहीं है। समाधि यस तो बहुत आगे की अवस्था है, तो ये सब हम यस लोग नहीं अनुभव कर पाएंगे, लेकिन उसमें जो सिद्धांत छुपा हुआ है, उसमें हमारे जीवन को इम्प्रूव करने के लिए जो जो पॉसिबिलिटी है, उसका हम लोग अपने जीवन में अपनी अपनी समझ के अनुसार हम लोग, जैसे वृत्तियों की बात करते हैं, वृत्ति मतलब क्या, हमारी सोच। तो हमारी सोच कैसे चलती है, कभी हमने सोचा है कि हम जो सोच रहे हैं उसमें दो भाग हैं, एक निगेटिव भाग है, एक पॉजिटिव भाग है। तो हम में से कितने लोग ये समझ पाते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो पॉजिटिव है और मैं जो सोच रहा हूँ वो निगेटिव है। तो ये जब हमको क्षमता आ जाएगी, ये समझ में आएगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत दिशा में जा रहा है, कोई चीज का कोई काम करना है, तो ये काम करने के लिए मैं जो निर्णय, मेरे जो कंसिडरेशंस हैं, मेरे जो क्राइटेरिया है, ये काम करूं कि नहीं करूं, वो क्राइटेरिया ही अगर गलत है तो काम गलत होगा। तो सही क्राइटेरिया क्या है काम करने, जब कोई चीज हम करते हैं तो हमको क्यों करनी चाहिए, वो क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो जीवन में सफलता तभी मिलेगी जब हम गलत काम नहीं करें और सही काम करें। तो ये समझ तो आना जरूरी है, ये समझ के बिना तो हम फिर निर्णय नहीं कर पाएंगे कि ये सही काम है या गलत काम है। तो ये क्षमता का तो विकास होना ही चाहिए। तो बौद्धिक स्तर पे तो आप जितना जितना आप अंदर जाओगे, उतना आपके जो आपकी जो इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक जो आपकी नीड है, या बौद्धिक जो आपकी जरूरत है, वो डेफिनेटली सूत्र में, सूत्र से बेहतर और कुछ भी नहीं है, उसको उसको यस सर, पूरा। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। अपर्णा जी। यस, नमस्ते सर एंड नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। नमस्ते। मैं योग में है ना मैम 2016 से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन हर टाइम जब भी मैं योग सूत्र मतलब स्टडी करती हूँ ना, तो इतना पर्सपेक्टिव मतलब हर किसी का मुझे अलग अलग मिलता है, तो वो देखने का नजरिया और भी अच्छा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और जो मन में जो चल बिचल थी अभी वो थोड़ा सा मतलब 10% भी नहीं बोल सकती, लेकिन 5% एटलीस्ट कम हो गई है। ओनली फॉर योग सूत्र मतलब किधर क्या बिहेव करना है, किधर क्या बोलना है, वो सब मतलब एक माइंडफुलनेस दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है मैम इसकी वजह से। और मेरे जीजा जी का क्लिनिक है, साइकेट्रिक है वो, तो उनके यहाँ जो रुग्ण आते हैं मनोरुग्ण, तो उनके ऊपर भी मुझे वो योग सूत्र अप्लाई करने के लिए इतना मतलब एक अलग नजरिया मिल रहा है कि पूछो मत। क्योंकि मैं इसलिए मैंने हर टाइम मतलब जब भी मुझे चांस मिलता है तो मैं अटेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो थैंक यू मैम, ये अपॉर्चुनिटी फिर से एक बार आपने दिया है। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। हाँ, थैंक यू अपर्णा जी। ये जो इन्होंने बात कही, इन्होंने साइकेट्री का एग्जाम्पल दिया। अब आपको एक आश्चर्य होगा कि ये योग सूत्र क्या है, ये भारतीय मानस शास्त्र है, ये भारतीय मनोविज्ञान है। इसीलिए मराठी में एक बहुत बड़े ऑथर हुए, कृष्णाजी केशव कोल्हटकर उनका नाम था। उन्होंने एक किताब लिखा था, उन्होंने लिखा पातंजल योग सूत्र अथवा सा, ये जो मनोविज्ञान, उसको मनोविज्ञान मानस शास्त्र बोला। ही हैज टाइटल्ड हिज बुक ओनली एज मानस शास्त्र। तो ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पतंजलि का मनोविज्ञान और गौतम बुद्ध का मनोविज्ञान दोनों एक ही है। ये जब हम सूत्र पढ़ेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल लेवल पे पतंजलि भी डॉक्टर थे और गौतम बुद्ध भी डॉक्टर थे। किसके डॉक्टर थे, मन के डॉक्टर थे। तो ये जो सफरिंग है लोगों में, वो सफरिंग को दूर करने का काम, दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने शिक्षा दी।
तो व्यक्ति जो दुख में है उसको वो दुख से कैसे निवृत्त हो, ये उनका लक्ष्य था। और दोनों का लक्ष्य, पतंजलि का भी लक्ष्य वही है और गौतम बुद्ध का लक्ष्य भी वही है। और आपको जान के आश्चर्य वो होगा कि सुबह जो 5 बजे उठना तब से सांख्य पीछे। का भी लक्ष्य वही है। सांख्य जो बोलते हैं, सांख्य कारिका, पहली कारिका ही उसके बारे में बात करती है। तो अपने जीवन से दुखों की मुक्ति। अब ये जो मनोरुग्ण है, उनको मनोचिकित्सा की जरूरत पड़ती है। तो कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग अ, सामान्य व्यक्ति को स्वस्थ समझते हैं, हम लोग अपने आप को भी स्वस्थ समझते हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि किसी डर के वजह से हमने कोई अच्छा काम नहीं किया हो? तो अगर किसी डर की वजह से हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि हमारे मन में जो नकारात्मकता है उसने हमारे ऊपर हावी होकर हमको रोक लिया। तो ये भी एक इंडिकेशन है मन की वीकनेस। ऐसे जीवन में बहुत बार होता है। तो मनोविज्ञान का और योग सूत्रों का बहुत गहरा संबंध सर थैंक यू सर। नमस्ते। हाँ रामदास स्वामी जी की जो श्लोक है, मनाचे श्लोक, है। वो और ये ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है ना सर? हाँ, आइडियाज बहुत सिमिलर हैं। आइडियाज बहुत सिमिलर हैं। और विस्तार से मनाचे श्लोक में तो फिर भी ब्रीफ है। लेकिन अगर दासबोध पढ़ेंगे तो दासबोध में तो बहुत ही विस्तार से बताया हुआ है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि नॉलेज, अपने बारे में जानकारी, अपने बारे में जानना। तो समर्थ रामदास ने दासबोध में तो यहाँ तक लिखा है, उन्होंने बड़ी लिस्ट दी है इसकी कितने प्रकार का ज्ञान है। सेक्युलर ज्ञान, जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र, और बहुत सारे अलग 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 डिसिप्लिन्स हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, ये सभी ज्ञान है। और ये सब ज्ञान को लिस्ट करने के बाद में ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिससे परिवर्तन हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। इस प्रकार का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो समर्थ रामदास दासबोध में बोलते हैं, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान। तो ये योग शास्त्र जो है ये आत्मज्ञान का, आत्मज्ञान पाने का सिस्टम है। मनाचे श्लोक आत्मज्ञान पाने का तरीका है, दासबोध आत्मज्ञान पाने का तरीका है। तो समर्थ रामदास जो बोलते हैं वो आत्मज्ञान के बारे में ही बोलते हैं, और योग सूत्र क्या बोल रहा है? आत्मा को ही समझना है, आत्मज्ञान ही है वहां पे, सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज द पर्पस। और उसके लिए मन को समझना जरूरी है, इसीलिए मनोविज्ञान है। तो इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, आपने अच्छा ये कनेक्शन दिया। तो दासबोध तो करीब करीब एवरीडे में एक मनाचे श्लोक सुनता हूँ, एक समाज सुनता हूँ दासबोध का। अभी चालू है वो एक्सरसाइज। तो इसीलिए मुझे मालूम है कि क्या क्या दासबोध में क्या क्या बातें हैं उन्होंने बताई है। तो डीप कनेक्शन है। और जैसे मैंने कहा, एक प्रैक्टिकल लेवल पे हम लोग गुणों की बात करते हैं, सत्व रजस तमस। तो सत्व रजस तमस के बारे में बहुत सटीक और बहुत ही मतलब सूत्र फॉर्म में जो राइट इंफॉर्मेशन वो हमको सूत्र में मिलेगी। लेकिन अगर दासबोध में अगर हम देखेंगे तो पूरा का पूरा एक चैप्टर इस बात को बताता है कि सत्व वाले सात्विक मन की स्थिति कैसे रहती है, उसके लक्षण कैसे रहते हैं, राजसिक व्यक्ति कैसे रहता है, तामसिक व्यक्ति कैसे रहता है। तो दासबोध जो है वो प्रैक्टिकल लेवल पे इन्हीं बातों का विस्तार करता है। बहुत सिमिलरिटीज, अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो बहुत सिमिलरिटीज हमको मिलेंगी। वो भी एक अप्रतिम ग्रंथ है। अगर किसी को पढ़ना है तो छोटा सा 200 श्लोक है, मनाचे श्लोक। वो भी रोज अगर आदमी एक श्लोक लेके उसका थोड़ा अध्ययन करेगा, उस पर चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो निश्चित तौर पे आदमी की उन्नति होगी होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत अप्रतिम ग्रंथ है वो भी। हाँ सर, संजीवनी जी हैं। हाँ संजीवनी जी। कोई और, किसी को और कुछ पूछना है? हाँ, म्हणजे बेबी का किती इनोसेंट है। हेलो। हाँ संजीवनी जी। हाँ मैडम, मुझे ये पूछना है
है कि अभी फिर आप बोले कि एक समाधि पाठ को 1 साल लगेगा, तो फिर पूरा पढ़ने को 3 साल लगेगा। 4 चैप्टर है तो 4 साल भी लग सकते हैं। वही मैं और सोच रही हूँ। आपके अभ्यास के ऊपर भी है ना, आप कितना आप तेजी से प्रैक्टिकल अप्लाई करो, सर फटाफट सिखाएंगे, लेकिन वो प्रोसेस करने में ही सर को पता है कि उतना टाइम लगता ही है। एक दिन आप सीखोगे तो पूरा वीक आप उसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हो, उतना टाइम अच्छा। लगता है। अगर आपको एप्लीकेशन के लिए चाहिए, सिर्फ आपको और वो एग्जाम के लिए चाहिए तो रोज रोज लेक्चर लेके खत्म भी हो सकता है ना। हाँ, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा है। हाँ संजीवनी जी। नहीं, फिर एक्सप्लेनेशन करवाएंगे या हमारे से याद करवा के लेंगे, ऐसा नहीं, क्या है याद कुछ नहीं पैटर्न? करना है, कोई बात नहीं, याद कुछ नहीं करना है। आपकी लाइफ में उसको आप कैसे, अगर जो हमारे दुख है उसको अप्लाई दूर करने के लिए क्या क्या करा। टेक्निक्स योग सूत्र में दिया है उसके बारे में बताएंगे सर। उसको कैसे आप अपनी बराबर। लाइफ में अप्लाई करोगे, है ना। हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं, दुविधाएं होती है, तो वो सब दूर करने के लिए योग सूत्र में क्या बताया है वो सब अच्छा। सिखाएंगे सर। हाँ जी। कुछ यहाँ पे तो एग्जाम, थोड़ा अगर आप एग्जाम के लिए जाओगे तो ही कुछ पढ़ने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए। बराबर। लेकिन ये कोर्स का पर्पस सर्टिफिकेट नहीं है, ये कोर्स का पर्पस है नॉलेज गेन करना। नॉलेज ठीक है। गेन करना। लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि मैंने 1 साल दिया, इतनी पढ़ाई की, तो मुझे कुछ वैलिडेशन भी होना चाहिए, तो उसके लिए बराबर। ऑप्शनल है, एग्जाम है, पर वो कंपलसरी नहीं है। ठीक ओके। है। हाँ जी, हाँ जी। मुझे वो स्पैन ही बहुत लग रहा है, क्योंकि 4 साल अभी हमारे पास टाइम तो कम है उम्र के हिसाब से। संजीवनी जी आप संजय। कंप्लीट कर लोगे। अब अगर 4 साल लगेंगे तो भी आप कंप्लीट कर लोगे। अप्लाई तो होना चाहिए जिसके लिए अपन हाँ, कर रहे हैं, वो तो एप्लीकेशन के लिए। आपको पता है, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो मैंने कृष्णा जी केशव कोलटकर के बारे में बात किया, ये हाँ। व्यक्ति एक इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क थे। अभी ये ब्रिटिश टाइम बराबर। की बात है, जब भी ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, तभी ये कृष्णा जी केशव कोलटकर एक क्लर्क थे इंश्योरेंस कंपनी में। और उन दिनों पेंशन हाँ। वगैरह कुछ नहीं होता था। तो जब वो रिटायर हुए तो बेचारे के पास एक कुछ भी खाने पीने के लिए भी कुछ पैसा नहीं था, बट स्टिल ही परस्यूड। और रिटायर होने के बाद में उन्होंने योग सूत्र का अभ्यास करना चालू किया। कौन सी एज में? 60 की उम्र में। रिटायर्ड। 60 मैं की उम्र। 66 हूँ सर। हाँ तो कोई बात नहीं, 4 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे। 70, हम लोग आप जब भी 70 के हो जाएंगे तभी हम लोग बात करेंगे इस बारे में। जरूर जरूर। मुझे तो 100 क्रॉस करना है, सेंचुरी मारना है मुझे। हाँ तो फिर 70 क्या है, कुछ भी नहीं है। हाँ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मैडम। थैंक यू। हाँ वंदना जी, क्या क्वेरी है आपकी? ये जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स का जो मतलब एक चैप्टर कंप्लीट होगा 1 साल में, ऐसा बोला था। हाँ, तो पहले हम 1 साल देखते हैं अटेंडेंस कितनी होती है, लोगों का इंटरेस्ट कैसा रहेगा। अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड रहोगे तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अगले साल फिर। पर वो आपका कमिटमेंट पहले 1 साल का ही करते हैं। ओके। मैम और सर, एक क्वेश्चन था। हाँ। अ, अगर किसी ने योगा पहले सीखा नहीं है, या किसी को, हम्म। या बेसिक जॉइंट मूवमेंट्स या सूक्ष्म व्यायाम किया होगा, उनको अगर ये इंट्रोड्यूस करना है, तो इज इट स्टिल फीजिबल? क्या क्या कुछ बैकग्राउंड होना जरूरी है किसी के लिए? नहीं, योग सूत्र के लिए कोई भी बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा हाउ टू लिव योर लाइफ, उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी बैकग्राउंड की जरूरत है ना। हर किसी को सुख चाहिए, हर किसी को प्रसन्नता चाहिए, हर किसी को एक तरीका चाहिए कि लाइफ को कैसे जिया जाए अच्छे तरीके से, है ना। ऐसा कुछ कहीं पे बताया है कि है ना, कि और बेटर कैसे कर सकते हैं लाइफ को। वो चीज सीखने के लिए आपको किसी प्री क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ। एनीबडी, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अभी सर को भी काफी टाइम हो गया है, तो सर एंड करें क्या यहाँ पे?
हाँ, ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना रहेगा तो ऑफिस के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से नंबर शेयर कर देती हूँ, 9136122892। यहाँ पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हो आगे का। और नेक्स्ट फ्राइडे फिर से हम मिलेंगे 7 बजे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन लेने के लिए। और सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। Thank you, thank sir. you. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. थैंक यू you. मैडम, थैंक यू। Thank you.